This is Dr. Nadeem. I'll be taking your practical competency number MI 8.7 on hand hygiene, PPE and biomedical waste. Can everybody hear me? Yes, sir. Okay. So, what are the learning objectives for today's practical? The learning objectives will be the student should be able to learn about the role of hand hygiene in keeping the healthcare associated infections at minimum, types of hand hygiene techniques, steps involved in hand hygiene technique, components of personal protective equipment that is PPE, sequence of donning and doffing of PPE. जो हम पहन रहे होते हैं पीपी when we are wearing the PPE it is known as donning and when we are removing the PPE that is known as your doffing and segregation of biomedical waste and its importance and finally treatment methods for infectious waste. Now before I move on to this hand hygiene thing I would like you to know what hospital acquired infections are. So hospital acquired infections are defined as infections acquired in the hospital by a patient who was admitted for a reason other than that infection, in whom the infection was not present or incubating at the time of admission, and symptoms should appear at least after 48 hours of admission. Now, this include infections acquired in the hospital but appearing after discharge and also occupational infections among staff of the healthcare facility. It is estimated that around 5 to 10% of patients admitted to acute care hospitals they develop HAIs. HAI are hospital acquired infections. Now, treatment of these HAIs adds a huge economic burden to the hospital. Now, what are the pathogens which are implicated in hospital acquired infection? Now, escape group of pathogens. They are mostly responsible for substantial percentage of nosocomial or infections in modern era. Now it is an acronym which stands for E for Enterococcus faecium, S for Staphylococcus aureus, K for Klebsiella pneumoniae, A for Acinetobacter baumannii, P for Pseudomonas aeruginosa, and E for Enterobacter species. Now, apart from these escape pathogens, there are other organisms also like E. coli, which also plays an important E. coli, Streptococcus, which also plays an important role in nosocomial pathogens. However, these escape group of pathogens are most important. Other infections which may spread in hospitals include E. coli, nosocomially acquired Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Candida albicans, Clostridium difficile, diarrhea. Now, transmission, it can be contact transmission like through direct contact or with indirect contact. It can be through inhalational mode, through droplets or airborne transmission, or it can be a vector-borne mode of transmission. Now, vector-borne mode of transmission is a very rare mode of transmission in hospital. Mostly you will see the contact transmission and inhalational transmission. Now, there are four most common HAIs which are encountered in the hospital. UTI being 33% forms the chunk of it, pneumonia 15%, surgical site infection 15%, and bloodstream infections 13%. Now, how do you prevent these HAIs? What are the precautions which one should take to prevent these to prevent the transmission of the HAIs? So these are through standard precautions. Standard precautions are a set of infection control practices used to prevent transmission of diseases that can be acquired by contact with blood, body fluids, non-intact skin, and mucous membrane. Earlier, they were termed as universal precautions. Now, the term has been replaced with standard precautions. Now, what are the components of standard precautions? So, there are basically six components of standard precaution. First is your hand hygiene. Then we have personal protective equipment. Third, sharp handling. Fourth, spillage cleaning, disinfection, and finally, waste handling. Now, let's start with the hand hygiene part. Now, hands are the main source of transmission of infection during healthcare practice. Hand hygiene is therefore the most important measure to avoid the transmission of harmful microbes and prevent healthcare associated infections. Now, any healthcare worker involved in direct or indirect patient care needs to be concerned about hand hygiene and should be
able to perform it correctly and at the right time. Now, what are the various what are the various types of hand hygiene methods? First is your hand rub, and the second is your hand wash. The third one is also there, which is surgical hand hygiene or surgical hand scrub. So let's discuss hand rub first. In hand rub, we are using alcohol-based hand rubs, which contains 70 to 80% ethyl alcohol and 2 to 4% chlorhexidine based. The duration of contact has to be at least for 20 to 30 seconds. The major advantage is that after a period of contact, the hand rub, it gets evaporated of its own. Hence, there is no need to dry the hands. Okay? Indications of hand rub is when you are doing your normal routine rounds in the ward or in ICUs. In all the moments or situation require hand hygiene, except when the hands are visibly dirty or soiled, when it will be ineffective. जब भी आपके हाथ तो आपको hand wash करना है. Hand wash. Hand wash is for a duration of 40 to 60 seconds. In this, antimicrobial soaps or liquid gels or baths available. If facilities are not available for antimicrobial soap, then you can use ordinary soap and water. Hand washing is indicated in the following situations. First, when the hands are visibly soiled with blood, excreta, pus, etc. Before and after eating, after going to toilet, before and after shift of the duty. Now, there are 8 steps which are involved in your hand rub and hand wash. एक न्यूमोनिक है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इससे आपको आसानी होगी याद रखने में. न्यूमोनिक इज सुमन के, SUMAN सुमन के. सुमन में S is सीधा, that is palm to palm. U is ulta, that is back to palm, both side. Then we have interlacing in between the spaces. M stand for muthi, back of the fingers on palms. A for angutha, that is thumb, both the thumbs in rotational rubbing. N is for nakhun, nail. Scrub your nails on palms, both sides. And finally, K for kalai is your wrist. So, समझ आया आप लोगों को? सुमन के. कोई रिपीट करेगा मेरे लिए ये? Can somebody repeat it for me? Gaurav? Yes, sir. It is Suman K. हाँ, repeat करो. बोलो बेटा. It is Suman K, and in which S is the सीधा, and U means ulta, or M means sir mutti, and A means angutha, and sir N means नाखून या फिर nails, और sir K means कलाई से. हाँ, जब आप उल्टा कर रहे हो ना SU, तो उसके बाद इंटरलेसिंग भी बोलना, ठीक है? तो इंटरलेसिंग इन बिटवीन वेब स्पेसेस ना, ये फिट, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुमन के बताया. तो ये आप हमेशा याद रखें. सीधा, उल्टा, इंटरलेसिंग इन बिटवीन वेब स्पेसेस, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून एंड फाइनली कलाई. हैंड रब जब आप कर रहे हैं तो दैट इज फॉर 20 टू 40 सेकेंड्स. जब आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो दैट इज फॉर 40 टू 60 सेकेंड. याद रहेगा बेटा आप लोगों को ये सब? यस सर. Okay. Now let's move on to the next part, which is the 5 movements of hand hygiene. कौन-कौन से movements है जब आपको hand hygiene करनी है? First, before touching a patient. Second, before a procedure. Third, after a procedure or body fluid exposure risk. Fourth, after touching a patient. Fifth, after touching a patient's surrounding. बहुत आसान है. पहला स्टेप जब आप पेशेंट को टच कर रहे हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट. सेकंड, आपने उसको कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है, बिफोर अ प्रोसीजर. थर्ड, जब आप वो प्रोसीजर कर चुके हो. फोर्थ, जब प्रोसीजर खत्म हो गया, पेशेंट को टच किया, तब आफ्टर टचिंग द पेशेंट. फिफ्थ, आफ्टर या पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का आईवी सेट है, आपने उसको टच किया, उसके बाद आपको ही हैंड हाइजीन करनी है. So there are 5 movements of hand hygiene, namely
before touching a patient, before a procedure, after a procedure, after touching a patient and after touching a patient's around. तो ये आपके हो गए 5 movements of hand hygiene. Now moving on to the second part of this practical, which is on personal protective equipment. ये कार्टून आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो इन्यूमरेट कराएं आप लोग मुझे कि क्या क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, कोई भी इन्यूमरेट कराएं इसमें देख के. कम ऑन, इट्स एन ओपन हाउस, आप लोगों को मैं डांटूंगा नहीं, एब्सेंट भी मार्क नहीं करूंगा, तो आप लोग, इट्स एन ओपन हाउस, आप कोई भी वॉलेंटियर है मुझे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के. एनीबॉडी? रोल नंबर 36. Gloves, ओके, ग्लव्स, mask, मास्क, ओके, gown, मास्क, eyeglasses, गाउन, and headgear, shoe cover, ओके, then cap, ठीक है, very good, and then finally we have the safety shoes. ठीक है, these are components of PPE है. पहले हो गया आपका hand gloves हो गए, you have head cap, you have face mask, you have goggles, then you have the apron or the gown, and then you have the safety shoes. अब इन सबको भी पहनने का ना एक ऑर्डर होता है, ठीक है. You have to follow this order, donning of PPE as well as doffing of PPE. डॉनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल को आप सर्जन बनेंगे, आप सर्जिकल फील्ड में आ जाएंगे, तो डॉनिंग आपको इसी सीक्वेंस में करनी है. पहले उसके बाद आपको डॉनिंग इसी, और अगर आप इन्फेक्शियस डिजीजेस से डील कर रहे हैं तो आपकी डॉफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन डॉनिंग. फर्स्ट, hand wash for 40 seconds, hand rub for minimum of 20. Then first is wear footwear while in a sitting position. Then you sanitize your hand. Then wear body gown, helping person to adjust the back strap. Then you sanitize your hand. Then you wear N95 mask. Then sanitize your hand. Wear a headgear. Then sanitize your hand. Wear a eye goggle, sanitize your hand, and then wear second pair of. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. while you have to take care that while donning you have to follow this particular, you are wearing in when you are dealing in with infectious diseases like in present scenario COVID-19. ठीक है, तो आपको सीक्वेंसिंग में इस सीक्वेंस में पहनना है. ठीक है, सिमिलरली ये हुआ हमारा डॉनिंग. दूसरा होता है डॉफिंग ऑफ पीपी. पीपी को जब आप रिमूव कर रहे हो तो किस ऑर्डर में रिमूव, तो आपको क्या करना है, रिमूवल ऑफ आउटर ग्लव्स एंड डिस्पोज इट इनटू द रेड बैग. सबसे पहला काम जब आप डॉफिंग कर रहे हैं पीपी की, जब भी आप अपनी पीपी को या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव कर रहे हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ एंड डिस्पोज दिस थिंग इनटू रेड बैग. Second is removal of gown with the help and disposal into yellow bag. Then you sanitize your hand. Now you remove your eye goggles and dispose them into red bag. Then again sanitize your hand, remove your headgear and dispose it into the yellow bag. Then again sanitize your hand, remove shoe cover and dispose it into the yellow bag. Then again you sanitize your, remove N95 mask and dispose it into yellow bag. समझ आ रहा है? N95 mask आप रिमूव करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे. Then again you will sanitize your hand and finally you remove a pair of gloves and discard them into red bag. Then you proceed for hand washing with soap and water for 30. और समझ आ रहा है क्या सीक्वेंस है? समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ओपन हाउस है ये, Yes, आप sir. यस नो तो Yes, sir. बोल ही सकते हो.
ठीक है। तो डॉफिंग के वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आउटर ग्लव पहना है आप उसको सबसे पहले उतार, ठीक है, और उसको रेड बैग में डाल दो। ग्लव्स को आपने रेड बैग में डालना है, मास्क को और शू कवर और हेड इसको आपने गाउन इसको आपने येलो में डालना। गूगल जो है, गूगल आपका प्लास्टिक का बना होता है, तो वो आपने रेड। तो आपकी पीपीई कंपोनेंट में दो ऐसी चीज हैं जो आपको रेड बैग में डालनी है। ग्लव्स डालने हैं, दूसरा आई गॉगल्स डालने हैं रेड बैग में, ठीक है। बाकी जो जो भी चीज आप रिमूव करेंगे वो आपको येलो बैग में डालनी है, ठीक है। सीक्वेंस इस तरह है, रिमूवल ऑफ आउटर ग्लव्स, उसके बाद हैंड हाइजीन, removal of gown with the help of with somebody's help, then you put hand hygiene, then eye goggle, hand hygiene, headgear, hand hygiene, shoe cover, hand hygiene, N95 mask removal, hand hygiene, and finally removal of inner gloves, followed by hand washing for 40 to 60 seconds with soap and water. ये जब हम पीपीई पहन रहे होते हैं ना, तो एक बडी सिस्टम होता है। बडी सिस्टम कहते हैं कि आप पीपीई पहन रहे हैं, आपके साथ एक और आपका बैचमेट या आपका टीममेट है जो आपको इन ऑब्जर्व कर रहा है व्हाइल वियरिंग द पीपीई। वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि आपने मास्क ठीक से लगाया कि नहीं लगाया, वेदर योर मास्क इज क्लोजली फिटेड टू द नोज, ठीक है, वेदर योर हेड गेयर इज प्रॉपर और नॉट, वेदर योर गाउन इज worn प्रॉपरली, वो आपको चेक करेगा। सिमिलरली आप उसको चेक करेंगे दोनों सिचुएशन में, while donning also and while doffing also। समझ आ गया आप लोगों को? Say Yes, yes sir. or no? ग्लव्स होना जरूरी है? No। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर पीपी में 2 ग्लव्स कोई इसमें कुछ लिखे हैं, कहना जैसे चाह रहा है तो बोल आउटर। सकता है। क्या बोल रहे सर हो? इसमें लिखा है 2 ग्लव्स, आउटर ग्लव और इनर ग्लव। लाइक हमने पहले जब किया था तो फिर एक ही ग्लव सेट का था शायद। तो अगर अगर तो मैं एक ही आपको ग्लव पीछे सेट मैंने। डॉनिंग में दिखा देता हूँ। डबल ग्लव्स, यस सर, इस इनर पे भी ग्लव लिखा हुआ है। लॉन्गर, देख लिया आपने? यस सर, बट अगर मतलब पीपी में कंपलसरी है डबल ग्लव ओनली? देखो, व्हेन यू पीपी में कंपलसरी डबल ग्लव इसलिए है बिकॉज यू आर डीलिंग विद इन्फेक्शियस एजेंट्स। पीपी आप कब पहन रहे हैं? पीपी आप जब पहनते हैं जब आप इन्फेक्शियस एजेंट से डील कर रहे होते हैं। सो वेयरिंग अ डबल ग्लव्स इट प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। समझ गए? क्लियर हुआ आपके डाउट? यस सर। ठीक है। तो आप अगर डबल ग्लव्स पहन रहे हैं, ठीक है, सपोज देयर इज अ ब्रीच, अगर आपने एक ही ग्लव पहना हुआ है और उसमें ब्रीच है, तो आपका पर्पस ही डिफीट हो गया। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है आपके हाथ पे लग जाएगा, है ना। तो डबल ग्लव्स अगर आप पहन ले रहे हैं तो इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, सो यू हैव टू वेयर डबल ग्लव्स, ठीक है। लाइक इन द प्रेजेंट सिनारियो, अभी कोविड-19 चल रहा है, इट्स एन हाईली इन्फेक्शियस एजेंट, तो अभी आपको डबल ग्लव पहन के रखना है, ठीक है। कुछ दिन पहले इबोला का हुआ था अफ्रीका में, तो इबोला के टाइम पे भी डबल ग्लव्स थे। तो डबल ग्लव्स का मोटिव यही रहता है कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे, ठीक है। चलो, नाउ we are done with the hand hygiene part, we are done with the PPE part. Now let's move on to the third part, which is biomedical waste. Now what is a biomedical waste? Definition क्या होती है बायोमेडिकल वेस्ट की? तो it is any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals in research activities or in the production or testing of biologicals and animal waste from slaughterhouses or any other similar establishment. तो ये होती है आपकी definition of biomedical waste. In current situation, general waste, it comprise around 80% of waste. It falls in general waste category. Now, general waste may be disposed of with usual domestic waste and urban waste management system. General waste, it does not cause any harm to human. However, the biohazardous waste, which constitute the remaining 20% category, it is very infectious and it comprises pathological and infectious waste 15%, chemical and pharmaceutical waste 3%, sharp waste 1%, cytotoxic and radioactive waste 1%. Now, what are the diseases which
one may get in case of improper handling of biomedical waste. So ये सारी बीमारियां हैं. Potential health risk from biomedical waste: AIDS, one can get hepatitis B and C, gastroenteric infections, respiratory infections, bloodstream infections, skin infections, effects of radioactive substances, and intoxication. So these are the diseases which one can contract while dealing with the biomedical waste. So biomedical rules were made in the year 1998. The first biomedical rules were made in the year 1998. Under those rules, there were 10 categories: category 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These rules were further amended in March 2016 and further amended in the year 2018. These rules are notified by the Ministry of Environment and Forestry and apply authorization from competent government authority. In this, the generator of waste is responsible for its segregation. अच्छा, जो 1998 के रूल्स है ना, उसमें कैटेगरी थी, 10 कैटेगरी थी, ठीक है. अब जो 2016 के रूल आए ना, इसमें कलर कोडेड कैटेगरी आ गई, तो 4 कलर कोडेड कैटेगरी बन गई. वन इज आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, येलो. सेकंड कैटेगरी इज रेड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इज व्हाइट कैटेगरी, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज योर ब्लू कैटेगरी. ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया आपको कि 1998 के रूल्स जो हमारे पास थे उसमें 10 कैटेगरी थी, ठीक है. 2016 के जो रूल आए और फर्दर अमेंडमेंट हुआ 2018 में, उसमें हमने 4 कलर कोडेड कैटेगरी है: येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू. अब इन सब में क्या क्या बायोमेडिकल वेस्ट आता है? येलो कैटेगरी में न्यूमोनिक याद रखो है, चेज, CHASE ME, चेज मी. तो टाइप ऑफ कंटेनर क्या होता है इसमें येलो में? नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग. ठीक है, तो क्या क्या टाइप ऑफ वेस्ट आ सकता है? चेज मी जैसे मैंने बोला, उसमें से सी इज फॉर केमिकल लिक्विड वेस्ट. नाउ दिस chemical liquid waste, there is a separate collection system leading to ATP. ATP is your effluent treatment system. एक बहुत बड़ा सा सिस्टम होता है जिसमें भी हॉस्पिटल का जितना भी लिक्विड वेस्ट जा रहा होता है वो उस सिस्टम के थ्रू होके जाता है और वहां पे उसका प्योरिफिकेशन होता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पोर्टेबल वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में तो नहीं आता है, बट पोर्टेबल वाटर में आता है. पोर्टेबल वाटर में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस इसको आप यूज कर सकते हो एटीपी के थ्रू. ठीक है, तो चेज मी में सी हो गया आपका सबसे पहला केमिकल लिक्विड वेस्ट. H stands for human anatomical waste. A stands for animal anatomical waste. S stands for soiled waste. Soiled waste मतलब आपने गौज लिया, कॉटन गौज लिया, उससे ब्लड साफ किया या पस साफ किया पेशेंट का, या यूरिन साफ हुआ, तो वो आ गया आपका इस पर्टिकुलर वेस्ट में, सॉइल्ड वेस्ट में. समझ गए? ई चेज में ई स्टैंड फॉर एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन. हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोलो, कुछ किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है. ओके चलिए. तो सर इसमें जो सर इसमें केमिकल लिक्विड वेस्ट भी है और सर सॉलिड वेस्ट भी है केमिकल वाला. केमिकल वेस्ट हो गया आपका, जैसे आपका मरकरी हुआ. ठीक है, आजकल क्या है कि मरकरी लेस सिस्टम है. ठीक है, एलिजा हम जब लगाते हैं तो उसमें हम जो है बफर यूज करते हैं. ठीक है, वो सारे केमिकल में आते हैं, तो वो आपके जाएंगे इसमें रेड येलो बैग में. समझ गए? ओके सर. चेज मी, M स्टैंड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड अदर क्लिनिकल लैब. समझ गए? तो येलो बैग में आपको चेज मी डालना है. चेज, किसी को चेज कर रहे हो, दौड़ रहे हो उसके पीछे, चेज मी. C stand for chemical liquid waste. C can also stand for chemical waste. H for human anatomical waste. A for animal anatomical waste. S for soiled waste. E for expired or discarded medicines. And M for microbiological waste. अब इसका ट्रीटमेंट डिस्पोजल मेथड क्या है? You either send it for incineration or plasma pyrolysis or deep burial. ठीक है, तो ये हुआ आपका येलो वेस्ट. रेड बैग में क्या आप डालते हैं? रेड बैग में टाइप ऑफ बैग आपको कौन सा यूज करना है?
नॉन क्लोरिनेटेड, ठीक है। इसमें जितना भी रिसाइक्लेबल मैटर है, कंटेमिनेटेड है, रिसाइक्लेबल है, आपको रेड बैग में डाल देना। जैसे ट्यूबिंग, बॉटल्स, आईवी ट्यूब्स, ठीक है, आईवी ट्यूब्स, नॉट द नीडल्स, ठीक है, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट द नीडल्स एंड ग्लव्स, ये आपने आपको इसमें देना है रेड बैग में, ठीक है। इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, इस वेस्ट को आप ट्रीट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट कैन बी डन थ्रू ऑटोक्लेव, माइक्रोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। बाद में ये सारी चीज, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट है, ये रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है वाइट। वाइट इज ट्रांसलूसेंट पंक्चर लीक टेम्पर प्रूफ कंटेनर। इसमें आपको डालने हैं वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो डाल दो, वेस्ट शार्प डाल दो। स्कैल्पल आपने कहाँ डालना है? वाइट में डाल देना है। कोई भी इम्प्लांट होगा वो आप किस में डालोगे? वाइट में डाल दोगे, ठीक है। इसको आपने क्या करना होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिस्पोजल ऑप्शन क्या है आपके पास? आप या तो इन्हें ऑटोक्लेव कर दो या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर दो, फॉलोड बाय श्रेडिंग, म्यूटिलेशन और इनकैप्सुलेशन। फाइनली वी हैव द ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में टाइप ऑफ बैग होता है कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू कलर्ड मार्किंग। एक कार्डबोर्ड बॉक्स होगा, उसमें ब्लू कलर की मार्किंग हो। इसमें आप क्या डालोगे? जितने भी ग्लास वेयर्स हैं आपके, पहले जो होते थे पुराने जमाने में क्या होता था ना, ग्लास सिरिंजेस यूज होती थी, आजकल भी यूज होती है। ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन जब आपको देते हैं, ठीक है, मोंटॉक्स टेस्टिंग के वक्त में ग्लास सिरिंजेस यूज करते हैं, तो वो आपको इसमें डालनी है, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है डिस्पोजल का? इट इज डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग और माइक्रोक्लेविंग और हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग। ये भी आपका रिसाइकल हो जाता है। तो आपके पास दो चीज हैं जो रिसाइकल हो रही है। एक तो जो आपने रेड बैग में डाला, जितना भी आपका रिसाइकलेबल है रेड बैग में डाला वो रिसाइकल हो गया। जो भी आपने ब्लू बैग में डाला वो भी आपका रिसाइकल हो गया। बाकी जो येलो है और व्हाइट है वो आपको डिस्पोज ऑफ कर देना। क्लियर है? क्लियर है ये सब चीज? Yes. अच्छा, तो बताओ मुझे ग्लव्स किस में डालोगे? रेड। 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 अच्छा, एक पेशेंट का आपने ना वो फॉलिस कैथेटर रिमूव किया है, जल्दी से बताओ किस में डालोगे? रेड। Red. वाइट। सॉरी, Red. रेड रेड। किसी ने व्हाइट बोला, किसने व्हाइट बोला? गलत बेटा। व्हाइट में जो आपको मेटल्स, यस सर, रेड ठीक है, रेड। जितना भी शार्प है ना आपने व्हाइट में डाल देना है। जैसे आपने किसी के स्टिचेस रिमूव किए हैं, पेशेंट इन्फेक्टिव है, मान लो उसे एमआरए से इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, एमआरए से का है, आपने स्टिच दिया था, स्टिच एब्सेस डेवलप हो गया, उसमें से आपको एमआरए से निकल के आ गया, ठीक है, तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है। आपके जो आपका ब्लेड है तो किस में करोगे? White. वाइट, ठीक है, ओके। अब मान लो कि आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। अब ड्रेसिंग में आपने गॉज यूज किया है, कॉटन यूज किया है, ठीक है, बेटाडीन स्वैब Yellow. यूज किया है, येलो, ओके, ठीक है। चलो, अब अगर अगला आता है लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स एंड बैग। सो ऑल बैग्स एंड कंटेनर्स फॉर सर बायोमेडिकल वाइट वाला वेस्ट। सर हाँ बोलो। सर जो वाइट वाला है वो भी तो स्टेरिलाइजेशन पे जा रहा है, तो रिसाइकल ही तो होएगा एक तरीके से। नहीं नहीं, उसको पूरा पढ़ो, उसके बाद हमने फॉलोड बाय ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट। पहले तो आपने उसे स्टरलाइज किया है, फॉलोड बाय श्रेडिंग और म्यूटिलेशन, उसके बाद आप उसको डिस्पोज करना है आपको, ठीक है। इनकैप्सुलेशन भी एक तरीका होता है। इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं कि ना, एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें आपने ये सारा वेस्ट शार्प डाला, ठीक है, उसमें आपने सीमेंट डाल दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप यू लेट इट ड्राई, ठीक है। सीमेंट में क्या होगा कि सारा का सारा शार्प जो है इसमें जम जाएगा, ठीक है, तो रीयूज नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो आपको पहले यस सर। ऑटोक्लेव और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करना है जितने भी वेस्ट शार्प है, उसके बाद आपको फॉलोड बाय श्रेडिंग। उसके बाद या तो आप श्रेड करा दो उसको, श्रेडिंग मतलब उसको तोड़ दो, पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, या म्यूटिलेशन कर दो उसका, या फिर उसको एनकैप्सुलेशन में कर। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये रीयूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? सही है? सर ग्लासवेयर में सर पर बता दीजिए। ग्लासवेयर, ग्लासवेयर आपको डिसइंफेक्ट कर दो पहले, या ऑटोक्लेविंग कर दो, या माइक्रोवेविंग कर दो, या हाइड्रोक्लेविंग कर दो, उसके बाद रिसाइकल के लिए भेज दो। जो सप्लायर है ग्लास
वेस्ट का उसके पास वापस भेज दो, वो रिसाइकल कर देगा, क्योंकि अब आपने डिसइंफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है। सर आई एम आस्किंग सर ग्लासवेयर में क्या क्या डाल सकते हैं? सर आपने बताया सिरिंज होती है जो ग्लास की पहले चलती थी, उसके अलावा और क्या डाल सकते हैं सर? हाँ, अगर आप आते हो तो आप ना ग्राम स्टेन करते हो, एल्बर्ट स्टेन करते हो, तो सबसे पहले तो आप वही डाल दोगे। आप बायोकेमिस्ट्री में गए थे, आपने शुगर टेस्टिंग करी थी यूरिन सैंपल में, किस में करी थी? टेस्ट ट्यूब में करी थी, आप वो डाल दो। ठीक है। आप टीबी क्लिनिक गए कि आपको मोंटॉक्स टेस्ट कराना है, ठीक है, उन्होंने आपका टेस्ट किया, उसके बाद उसकी जो ग्लास सिरिंज है वो कहाँ डालेंगे? वो भी इसमें ग्लास वेस में डालेगा, ब्लू बॉक्स। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे ना चीजों को ना जोड़ना सीखो। ठीक है। खाली अगर ऐसे ही देखोगे ना तो रटने से कुछ नहीं होगा। रट लोगे कितने दिन? एग्जाम तक रट लोगे, 1 साल रट लोगे, पीजी एग्जाम तक रट लोगे, है ना? ये जो चीज है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है आप लोगों के साथ। तो उन सबको जोड़ के सीखो कि आपने, अच्छा आपने बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा था, तो ये चीज आपने बायोकेमिस्ट्री में यूटिलाइज की थी, इसको आप कहाँ डालोगे? ठीक है। आप सर्जरी में जा रहे हो, आप इंटर्न हो गए, आपको अपने स्टिच रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, स्टिच रिमूव करने के बाद आपके पास स्कैल्पेल है, आपके पास ब्लेड है, आप उसको कहाँ डालोगे? ठीक है। तो इस तरह से कोरिलेट करो चीजों को। क्लियर है? यस ठीक है, सर। आगे बढ़े। चलो, ठीक है। ये जो लेबल देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये बायो हैजर्ड का लेबल है। जितने भी आप कंटेनर्स बनाएंगे, जितने भी चीजें बनाएंगे, उन सब में ये लेबल डालना जरूरी है। ठीक है। अब आता है स्टेप्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, वो तो हमारी कैटेगरी हो गई, डाल दी है। अब होता है स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स इन वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि ये रेड बॉक्स में जाए, रेड बैग में जाएगा, ये येलो में जाएगा, ये ब्लू में जाएगा, ये व्हाइट में जाएगा। देन इज कलेक्शन, देन यू कलेक्ट इट, देन यू पैक इट, then you transport it and then store it। हर एक हॉस्पिटल प्रेमिसेस में एक रूम होता है जहाँ पे सारा बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होकर स्टोर किया जाता है। नाउ दिस स्टोरिंग शुड नॉट बी बियॉन्ड 48 आवर्स। 48 घंटे के बियॉन्ड आपको स्टोर करके नहीं रखना है, आपको पहले ही उसको वहां से डिस्पोज ऑफ कर देना। जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब हॉस्पिटल से एक एजेंसी अटैच होती है, जो कि फाइनली उस हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करती है और आगे अपने सेटअप पे उसे ट्रीट करके डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स पे रीयूज के लिए सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं वेस्ट डिस्पोजल। segregation and safeguard. Segregation is the most crucial step. Segregation, it is done at the point of generation by the segregation. ठीक है। तो सेग्रीगेशन आप पॉइंट ऑफ जनरेशन पे कर दोगे ना, तो क्या होगा कि it reduces treatment cost, it reduces impact on community, and it also reduces infection in healthcare workers। HCWs are healthcare workers। डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि ईटीपी होता है। ईटीपी इज योर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सारे के सारे हॉस्पिटल का जो सीवेज कनेक्शन होता है, ठीक है, वो एक सिस्टम से होता है, ईटीपी सिस्टम से। ईटीपी सिस्टम में बहुत सारे 3-4 बड़े बड़े जाइंट सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है। उसमें आप देखोगे, यहाँ देखोगे हमारा मॉर्चरी के आगे लगा हुआ है ईटीपी। ठीक है। जब आप लोग कभी जाओगे बॉयज हॉस्टल की तरफ, तो मॉर्चरी के सामने देखोगे हमारा ईटीपी लगा हुआ। ठीक है। तो उसके थ्रू ये लिक्विड सारा का सारा जो वाटरी लिक्विड सीवेज सिस्टम है, उसके थ्रू गुजर होके निकलता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे सारा नॉन इन्फेक्शियस होता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, उसी में न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। ठीक है। और ये एक दिस लिक्विड वेस्ट इज फाइनली converted into a potable water। Potable water does not mean that drinking water। इसका मतलब है कि आप इट कैन बी यूटिलाइज फॉर थिंग्स लाइक फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है। पौधों को पानी देना है, उसमें दे दिया आपने। ठीक है। आपने सब्जियों को पानी देना है, उधर दे दिया। ठीक है। वॉशिंग एरियाज में ये यूज हो सकता है। ठीक है, बट नॉट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नाउ व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस? गुड प्रैक्टिसेस इज कि आपका जो बैग है, बायोमेडिकल वेस्ट बैग है, किसी भी कलर का हो, इट शुड बी फिल्ड विद ओनली 2/3 कैपेसिटी। ज्यादा फिल करोगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ गिरेगा, और जब बाहर की तरफ गिरेगा, स्पिल होगा, तो आपका पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, है ना? सो द बैग शुड बी ओनली 2/3 फिल्ड विद कैपेसिटी। बैग शुड बी लेबल्ड एट द सोर्स। लेबलिंग में क्या होना चाहिए? डेट ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, वेस्ट कैटेगरी। चार आप बैग देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का है, रेड है, येलो भी आपको दिख रहा है। ठीक है।
transportation. Now this waste has to be transported. Now this waste is generally transported in trays, in trolleys. ठीक है, ट्रॉलीज में हमें ये वेस्ट को भेजना है. ठीक है, तो ट्रॉलीज किस तरह की होनी चाहिए? ट्रॉलीज आप जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो इमेज के येलो बैग जिसमें डले हुए हैं, ये एक इनकरेक्ट एग्जांपल, whereas on the right side of the screen is a correct example of how you transport a biomedical waste. लेफ्ट वाले में आप बताओ कि क्या क्या गलतियां हैं, बताओ आप मुझे, बोलो बोलो, कोई भी बोलो. लेफ्ट वाली इमेज में, एक इमेज में, इसी स्लाइड में दो इमेजेस हैं, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट वाली गलत है, राइट वाली करेक्ट है. लेफ्ट में क्या क्या गलतियां हैं ये बताओ मुझे. तो इसमें कवर नहीं है एंड मतलब ऐसे दे आर प्रोन टू, मतलब फटने के लिए प्रोन है, मतलब ऐसे रगड़ लगेगी तो फट सकता है. ठीक तो है, गिर भी सकता है मतलब वेस्ट. और क्या? जो ट्रांसपोर्टर है उसको देखा आपने? ही इज नॉट वेयरिंग पीपी. सर उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं और पीपी भी नहीं पहना. हाँ, उसने कुछ भी नहीं पहना. ठीक है, देयर इज नो पीपी, प्लस इट इज एन ओवरलोडेड ट्रॉली. ठीक है, whereas on the right side of your picture, राइट साइड में देखोगे, एक तो ट्रॉली में बायोमेडिकल वेस्ट का वो लगा हुआ है, साइन है इधर, देख रहे हो. उसके बाद इट इज टोटली कवर्ड, पूरी तरह से बंद हो रखी है. हैंडलर ने पीपी पहन रखा है, ही इज वेयरिंग द गाउन, ही इज वेयरिंग द मास्क एंड ही इज आल्सो वेयरिंग द ग्लव्स. सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. आप लोगों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं और आप लोगों को दिखता है कि कोई भी वार्ड बॉय या कोई भी सुलभ का वर्कर इस तरह से जो लेफ्ट साइड में ले जा रहा है, इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट ले जा रहा है, आप उसे रोकें और आप उसे बताएं कि दिस इज एन इम्प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग बायोमेडिकल वेस्ट. इससे उसको भी खतरा है और जिस रास्ते से वो जा रहा है उन रास्ते पे भी खतरा है. समझे आप? So this is your moral responsibility. आपको ये बोलना है. समझ रहे हैं आप लोग? Yes sir. क्योंकि अभी ये आपके ट्रेनिंग के दिन है. आप लोग अभी से बोलना सीखेंगे तभी अपनी प्रैक्टिस में आगे जाके आपके ये काम आएगा. आप अभी से नहीं बोलेंगे, आप आगे प्रैक्टिस में भी नहीं बोल पाएंगे. तो ये सारी चीजें. हाँ बोलो. तो जैसे राइट साइड में दिखा रखा है, जो मतलब लेफ्ट साइड में जो मतलब काफी ज्यादा ओवरलोडेड है. हाँ, तो हमारे हॉस्पिटल ऐसे ही होता है, ओपन टाइप का होता है, मतलब कवर्ड नहीं होता है कभी भी, जैसे हमने भी कभी देखा. यही बात आपकी आ गई ना यहाँ पे. तो आपके हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना? तो आपको ये उन्हें बोलना है, समझे? ये जो है ये आपके ऊपर है. मुझे मिलता है कोई, मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ हॉस्पिटल में, मैं टोक देता हूँ कि आप ये गलत तरीके से ले जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी उन्हें बोलना है. आपके हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप उनसे पूछें. ठीक है, आप उनसे पूछें कि आप किस वार्ड से ये लेके आ रहे हैं, किस वार्ड से लेके आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछे, फिर यू करेक्ट देम. ठीक है, अगर आपको लगता है, आप बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करें. आपकी कॉलेज की बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी में डॉक्टर शुक्ला दास हैं, मैं हूँ. ठीक है, डॉक्टर नदीम मैं हूँ. तो आप हम लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप लोगों को लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आप लोग हमें बता सकते हैं. आप लोग हमारी आंख और कान है, समझ रहे हैं? आप लोग क्योंकि आई कैन नॉट गो एवरीवेयर, डॉक्टर शुक्ला कैन नॉट गो एवरीवेयर, है ना? तो आप लोग हर जगह जा रहे होते हैं, है ना? तो आप उनसे बता सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस वार्ड से आ रहे हैं, आप ये क्या लेके आ रहे हैं, और आप ये जो जिस तरह से लेके आ रहे हैं आपको गलत तरीके, है ना? उन्हें समझाओ कि आपको ये अगर इस तरह से ले जा रहे हैं तो इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं. समझ रहे हो? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्टर. अच्छा, जैसे हर एक हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, तो हॉस्पिटल पूरा प्रोसेस नहीं करता है. हॉस्पिटल जो है ना, एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपना जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट, वो दे देता है. तो हमारा जो यहाँ पे जो जीटीबी हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, that is taken by SMS Watergrace. SMS Watergrace is a firm which is collecting biomedical waste from our setup, and in turn they are processing the biomedical waste. ठीक है? Finally, we have documentation. Documentation
should be done during collection of in a register with signatures of sister in charge and sanitation inspector. हर एक हॉस्पिटल में sanitation inspector होता है जो कि ये सारी चीजों पे देखता है. Then during delivery at treatment site. ठीक है. Now let's move on to the treatment and disposal methods. First is your incineration. Incineration ये देख रहे हो आप कि incineration में क्या होता है? Very significant reduction in waste volume and weight. It is done for those that cannot be reused. जो आप reuse नहीं कर सकते हो, आप उसको incineration कर दो. ठीक है. ध्यान ये रखना है कि प्लास्टिक बैग को आप कभी भी incinerate नहीं करोगे. ठीक है. Plastic bag should never be incinerated. Second is your autoclave. Autoclave is used in laboratories and clinics for treating infectious waste before disposal. इसमें आप कोई भी microbiological, biotechnological solid for autoclaving. Chemical disinfection. Chemical disinfection is through your alcohols, the phenols, and the chemical disinfectants like hypochlorites, aldehyde like formaldehyde, glutaraldehyde. ठीक है, ये होता है chemical disinfection. ETP का ये फोटोग्राफ आप देख लो, आपके राइट साइड स्क्रीन पे है. ठीक है. सो इस तरह का ETP होता है. ठीक है. बड़े बड़े जाइंट, ये तो छोटा है, बड़े बड़े जाइंट सिलेंडर्स होते हैं. Then we have microwaving. Microwaving is a method of sterilization of small volume waste at point of generation. Now it cannot be used for anatomical waste, metal items, and for toxic or radioactive waste. Then we have shredders. Shredder waste are sharp waste which are then cut into smaller pieces. They help in prevention of reuse of biomedical waste. Shredder आप यूज करोगे ना तो बायोमेडिकल वेस्ट का रीयूज नहीं होगा. जैसे आपने निडल ऐसे ही फेंक दी, क्या होगा कि कोई रास्ते में ड्रग एडिक्ट जा रहा है, उसने वो निडल उठाई और फिर अपने लगा ली, है ना. तो दैट इज व्हाई श्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट. देन फाइनली सैनिटरी लैंडफिल्स. इस तरह के लैंडफिल्स होते हैं. ठीक है. इसमें स्मॉल डीप बरियल पिट ऑफ 2 मीटर डेप्थ इज बीइंग डग. आपको 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है. उसके बाद उसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक और केमिकल वेस्ट सॉलिड आपने डाल दिया. फिर उसके ऊपर 1.5 मीटर तक आपने उसमें फिल किया. फिर बाकी के आधा मीटर जो बचता है उसमें आपने लाइम डाल दी. एंड देन यू कवर इट विद सॉइल. फाइनली यू पुट अ फेंस अराउंड इट सो दैट एनी एनिमल और डॉग और ह्यूमन दे डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू द सैनिटरी लैंडफिल साइट. समझ गए. 2 मीटर का गड्ढा खोदा. ठीक है. गड्ढा खोदने के बाद आपने उसमें 1.5 मीटर तक अपना वेस्ट भर दिया. वेस्ट भरने के बाद आपने उस पर लाइम डाल दिया. लाइम डालने से ये होगा कि लाइम क्या करेगा, डिकेइंग जल्दी कराएगा उसकी. उसके बाद आपने 1.5 मीटर आपने आधा मीटर आपने लाइम डाला और फाइनली उसके ऊपर आपने सॉइल कवर डाल दिया. फाइनली फिर उसके अराउंड फेंसिंग कर दी. फेंसिंग से क्या होगा कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा उस एरिया में. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल क्लास. I hope you have understood what I was trying to teach you. ठीक है. हैंड हाइजीन कैसे करनी है, PPE कैसे पहननी है, कैसे डॉफिंग है, एंड फाइनली योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. Now please hang on for a second. Let me take your